Very good evening and a warm welcome everyone to the Lit Tour. The Lit Tour is an initiative of Literia Insight around the country with a vision to bring books and the screen as close as possible, narrowing the journey of bestsellers to blockbusters and helping them reach the masses. We have some illustrious people with us today to be discussing books, drama, and screen. It is an absolute delight and honor to be hosting a wonderful panel. And I would like to thank Literia Insight for this opportunity. So without any further delay, let me introduce our esteemed guests. Deepankar Prakash. Born in Jaipur, Deepankar Prakash is an Indian film director and screenwriter. Deepankar made his directorial debut with Muso the Mouse, with Yashpal Sharma as the lead. As a filmmaker, he is known for his award-winning short films such as Masakkali, Kagpanth, Podarok, and Naked Voice. He's also known for his theater background. Welcome, sir, and thank you so much for taking your time out today and being with us here. Thank you so much, Jyoti. Thank you so much. And we have Bhaswar Mukherjee here with us today, an engineer and an alumnus of IIM Bangalore. Bhaswar Mukherjee quit his job of 18 years and started his own company, Bridgepoint Solutions Private Limited, in 2005. Bhaswar began writing in 2014, and though he calls himself an accidental writer, he is a contributing author to 10 anthologies till date and India's first composite novel. For the Write India contest seasons 1 and 3, his short stories have been selected among the winning top 10 by various authors for their respective prompts, such as Amitabh Ghosh, Ashwin Sanghi, Upmanyu Chatterjee, Vivek Shanbag, Nayantara Sehgal, and Tuhin Sinha. Sudha Murthy and Ravinder Singh have also selected his submissions for the anthologies curated by them. For his solo anthology, It Happens, Stories of Human Relationships, published in May 2020, the Navi Mumbai Chambers of Business and Industries recognized him as the Best Storyteller 2021 at the Indian Authors Conference and Awards. In January 2022, Bhaswar's first non-fiction, The Counterfeiter, Abdul Karim Telgi and the Stamp Scam, was published by Om Books International. And we can also see the book's cover page as a wallpaper, and that's wonderful. And he also has a passion for theater, having acted in and directed many. So welcome, Bhaswar. Thank you for being here with us today. Thank you so much. Wonderful to be here. We have yet another acclaimed author joining from Delhi, Sonia Sahejwani, a mother, a homemaker, a working professional, and a writer by passion. Sonia Sahejwani is the author of 3 books, Yours Legally, Baby on Board, and Aapki Siya LLB. An LLB graduate from Faculty of Law, Delhi University, Sonia pursued English print journalism from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. After a brief stint with a leading financial magazine, she left her job to study law. She is currently working in a public sector company as a legal officer and is residing in Delhi with her family. Welcome, Sonia. So good to have you here with us today. Thank you so much. It's my honor. And we have Nitish Raj from Literia Insight, the driving force and the brain behind the Lit Tour. Nitish Raj is the co-founder of Literia Insight and the editor-in-chief at the Literary Mirror. His passion for literature has driven him to make a mark for himself and has crafted his art to become a guiding force for new and existing authors through Literia Insight. He has been an eminent speaker at prestigious institutions like IITs, IIM Lucknow and NIT Silchar. And he's the host of a unique talk show, The Lit Talks, a Reflix original, streaming on Reflix and OTT platform. Welcome, Nitish, and thank you so much for the Lit Tour and this lovely panel discussion happening today. Thank you, ma'am. Thank you. So welcome once again, everyone. Thank you. Thank you. And as we all know that we are discussing books, drama, and screen here today, and we have both cinema and literature represented here. So when we speak of cinema or literature, there's one thing which cannot be ignored, and that is content.
So that brings me to my very first question. That would be to Deepankar sir. Sir, in this era of OTT, there's no amount of content or trends that is ever enough. So as a director and script writer, how challenging do you find the process of generating a good content? सी देखिए, ये आज की बात नहीं है। जब सिनेमा हम थिएटर में भी देखने जाते थे तो साल में काफी फिल्म्स रिलीज होती थी, लेकिन कुछ ही फिल्म्स ऐसी होती थी जो सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर होती थी। सो अभी भी वही है, कंटेंट बहुत बन रहे हैं। ओटीटी ने, इतने ओटीटी आ गए हैं जिसमें से मतलब कई तो ऐसा बिजनेस की तरह खोल के बैठ गए हैं लोग। तो उसमें से भी ओटीटी, पहले तो ओटीटी का चुनाव करना अपने आप में है। ऐसे बहुत सारे ओटीटी है, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ भी चल रहा है, जिसमें कोई कुछ भी बना के अपना शो रील, मतलब अपना फिल्म बना रहे हैं या फिर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिर वेब सीरीज बना रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, उनकी रीच भी नहीं है टेक्निकली। तो जो मुझे लगता है 5-6 ऐसे ओटीटी है जिसमें नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है या फिर हॉटस्टार है, सोनी लिव है, ZEE5 है, जो कि इंडिया में मुझे लगता है ठीक से एक्टिव है, जिसकी ऑडियंस भी डिसेंट है, जहां पे आप अपना अगर काम आपका रिलीज होता है तो डेफिनेटली वहां से एप्रिसिएशन आपको मिलता है। बट एट द सेम टाइम अगेन मैं यही कहूंगा कि वहां भी इतना कंटेंट आ रहा है, और उसमें से अब जैसे हम बात करते हैं, रिसेंटली एक सीरीज आई थी पाताल लोक। उससे पहले जयदीप अहलावत कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। जयदीप हाँ ठीक है, एक्टर, अच्छा एक्टर, बट उसमें कोई इतने बड़े चेहरे नहीं थे उस सीरीज में, लेकिन उसकी इतनी तारीफ हुआ, उसको इतना एप्रिसिएशन मिला। एट द सेम टाइम वो हिट रही। उसका दूसरा पार्ट सीक्वल बन रहा है पाताल लोक 2 का, दिल्ली क्राइम थी, उसका सीक्वल बन रहा है। तो इनमें बहुत बड़े चेहरे नहीं थे। जैसे हम कहते थे कि सिनेमा पहले स्टार्स के लिए था, कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े, जब तक आपके पास चेहरे नहीं है बहुत मुश्किल होता था फिल्म बनाना, या फिर उस फिल्म बनाने के बाद रिलीज करना तो बहुत ही मुश्किल टास्क था। वो आज भी है, नो डाउट। अगर ओटीटी नहीं होते तो बहुत प्रॉब्लम होती इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को। कहीं ना कहीं ओटीटी ने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहां पे वो अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तो फायदा हुआ है। अब रही बात कंटेंट की, तो डेफिनेटली मैं वही कहूंगा कि हर तरीके की ऑडियंस है, क्लासी भी है, मासी भी है। सो हो सकता है किसी को सूर्यवंशी भी पसंद हो, और किसी को अनुराग कश्यप की रमन राघव भी पसंद हो, और किसी को और ऑफ बीट जाना है तो फिर कोई, अब जैसे मूवी एक ओटीटी अगर आपने सुना हो तो वो सिर्फ आर्ट हाउस फिल्म्स में डील कर रहा है। तो मूवी जो है बेसिकली आर्ट हाउस फिल्म्स के लिए डील कर रहा है, और इससे पहले अभी तक कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो सिर्फ आर्ट हाउस फिल्म्स को लेकर एक प्लेटफॉर्म लेकर आए। ये सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म रहा। हालांकि ऑब्वियस है कि उसमें पैसा नहीं है, वो बहुत कम पैसों में आपकी फिल्म खरीदते हैं, लेकिन कम से कम लोगों तक पहुंचा तो रहे हैं। कम से कम इंटरनेशनल ऑडियंस उसको देखेगी, अप्रिशिएट करेगी, आपकी फिल्म के बारे में कोई रिव्यू लिखेगा, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ी रीच तो बढ़ेगी। फेस्टिवल के बाद अगर कोई दूसरा माध्यम था आर्ट हाउस फिल्म्स के लिए, तो ये मूवी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। तो वही बात है कि जो कंटेंट है वो 2 तरीके से हिट होता है। एक होता है कि सिम्बा आती है एक फिल्म जो कि 300 करोड़ कर जाती है। एट द सेम टाइम एक आंखों देखी आती है रजत कपूर की, जो कि बहुत बड़ा लॉस में रहती है, 5 करोड़ की छोटी सी फिल्म, बट फिर भी अप्रिशिएट होती है। तो रजत कपूर के पास स्कोप नजर आता है कि नहीं यार, मेरी ऑडियंस, भले ही 100 लोगों ने मेरी फिल्म देखी, बट 100 के 100 लोगों ने मेरी फिल्म की तारीफ की, और जिन्होंने मेरी फिल्म देखी वो सिनेमा लवर्स थे, उन्हें सेंसिबिलिटी उनकी अच्छी थी, उन्हें वो सब स्लो मोशन ड्रामा और जो सिम्बा में या फिर उस तरीके की फिल्म्स में, मेन स्ट्रीम फिल्म्स में जो हम देखते हैं टिपिकल कमर्शियल सिनेमा में, वैसा ड्रामा उसमें नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा उसको अप्रिशिएट, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। और डिसाइड करना तो बड़ी अजीब बात लगती है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ राइटर या बीइंग अ फिल्म मेकर, जब आप कुछ पढ़ते हो या कुछ आइडिया आपको क्लिक होता है तो वो डे 1 ही आपको पता लग जाता है ये मैं बनाऊंगा या नहीं। जैसे मेरी पहली फिल्म मूसो थी, तो उससे पहले मैं कोई दूसरी फिल्म पे काम कर रहा था, दैट वाज क्राइम थ्रिलर, जिसको अब मैं बनाने वाला हूँ। तो उस फिल्म की राइटिंग हो चुकी थी, फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था, सेकंड ड्राफ्ट में मैं काम कर रहा था। बट मेरा एक एडी था, उसने बोला कि दादा एक बहुत अच्छा प्ले है, वो देख, मैं चाहता हूँ आप देखने चलो मेरे साथ। तो मैं वो प्ले देखने गया, और वो प्ले मतलब मैं घर तक उसके बारे में सोच रहा था, और मैंने ये घर आते आते डिसाइड कर लिया था कि इस पे मुझे फिल्म बनानी है। ये कोई भी राइटर है, क्या राइटर, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में तब तक मुझे पता नहीं था। देन आके मैंने सर्च की, डिटेल्स वगैरह निकाली, तो जॉन स्टेनबेक जो थे, उनकी कहानी है ऑफ माइस एंड, वो नॉवेल बड़ा फेमस नॉवेल रहा है अमेरिका में, तो वो मैंने पढ़ी और उसको डिटेल में पढ़ के और फिर अपना स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश करी। तो बहुत डरा हुआ था। खैर उसका भी सवाल है आगे, आप उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे मूसो में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंटेंट जो है वो लग जाता है कि ये मुझे बनाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि
ऑडियंस को क्या चाहिए वो गांधी जी के अलावा कोई जान नहीं पाया उनके बाद। उनको पता था क्या चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता टेक्निकली कि क्या चाहिए। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, मैं अपना एक्सप्रेशंस देना चाहता हूँ, मैं अपना विजन दिखाना चाहता हूँ। मे बी हो सकता है उसकी ऑडियंस कम हो सकता है उसके लिए 1000 लोग हों उस सिनेमा के लिए, लेकिन 1000 में से अगर 900 लोगों ने आपकी फिल्म की तारीफ की तो वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन रही बात कमर्शियली सक्सेस की, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक तो हम देखते हैं कि बहुत मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा होता है, एक बहुत आर्ट हाउस होता है। आर्ट हाउस का ऑडियंस इंडिया में नहीं है, कमर्शियल सिनेमा की भर के ऑडियंस। तो क्यों ना बीच का एक रास्ता निकाला जाए, क्यों ना कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म्स बनाई जाए जिसके अंदर मतलब कोई लॉजिक भी मिस ना हो और बहुत ज्यादा सिनेमा लिबर्टी भी ना हो। एट द सेम टाइम जो आप कहना चाहते हैं अपनी बात आर्ट और कमर्शियल का ध्यान में रखते हुए कह दे। तो मेरी कोशिश वही रहती है, मेरी जो भी आज तक मैंने फिल्म्स करी है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो क्लासी भी और मासी भी है, जो दोनों तरीके के सिनेमा देखती है। काफी अच्छी बात कही आपने। और चूंकि हम कंटेंट और ओटीटी की बात अभी कर रहे थे, जैसा आपने भी कहा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे फिर से कि ऐसी धारणा है कि किताबों से सिनेमा को काफी एक रेडी कंटेंट मिल जाता है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल है, 100% सहमत हूँ मैं। क्योंकि और क्या है कि हिंदुस्तान में ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं जब नए फिल्म मेकर से मिलता हूँ, फिल्म स्कूल के कोई पास आउट होके आते हैं, मिलते हैं, कोई इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो इतना ज्यादा उन लोगों ने ना, मतलब वर्ल्ड सिनेमा उनके दिमाग पे इतना हावी हो गया ना, या वेस्टर्न सिनेमा मैं कह लूं इतना हावी हो गया है ना, कि वो उन्हें पता ही नहीं कि इंडिया में अभी तक क्या क्या लोगों ने लिख दिया है। मतलब मैं जब मुंबई गया था 2010 में, तो 2010 से 2015 तक सिर्फ 5 साल में पढ़ा ही और मैंने कुछ किया नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के जितने भी राइटर्स रहे, जिसमें भले ही वो सादत हसन मंटो रहे या फिर प्रेमचंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, विजय तेंदुलकर हो गए, जितने भी हैं, योगेश सुमन हो गए, जितने भी राइटर्स, मोस्टली मेरी किश्ती में पढ़ लूं। और तो किताबों का तो बहुत बड़ा योगदान है सिनेमा में, मैं हमेशा से कहता आता हूँ। क्योंकि कहानी आपको मिल जाती है ना अगर एक बार, तो ABC, हम जैसे हमारे 3 एक्ट ऑफ राइटिंग होती है, तो 3 एक्ट अगर आपको मिल गए तो फिर आपको स्क्रीन प्ले लिखना है। फिर डेवलपमेंट इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। जब आपके पास में आपको पता है कि मेरा फर्स्ट एक्ट ये है, सेकंड एक्ट ये है और थर्ड एक्ट ये है, तो जो चैलेंजेस है फिर वो स्क्रीन प्ले के लेवल तक रह जाते हैं। लेकिन जब तक आपके पास एक प्रॉपर कहानी नहीं है, तो फिर स्क्रीन प्ले तो आगे की कहानी है। स्क्रीन प्ले से पहले आपके पास कहानी होना जरूरी है। और इसलिए किताबों में मुझे लगता है बहुत हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गई है जिन पर आज तक भी काम नहीं हुआ है। बहुत ऐसी कहानियां हैं। मेरी एक फिल्म थी, मैंने शॉर्ट फिल्म है, वो भी जल्द रिलीज होने वाली है। लास्ट ईयर वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी। पीयूष मिश्रा है उसमें। वो है सादत हसन मंटो की एक कहानी, नंगी आवाज़ें, मैंने उस पर बनाई है। तो मेरी कोशिश यही है कि अच्छा लिटरेचर जो हिंदुस्तान में लिखा गया है, जो अभी तक पहुंचा नहीं है, क्यों ना उसको अपने तरीके से बनाओ। जरूरी नहीं है कि ठीक है उन्होंने 90-20 या 90-30 या 40 में लिखा था, ओके वो उस टाइम का सिनेरियो था, लेकिन चीजें उतनी आज भी है, वो हालत आज भी है, बस देखने की हमें जरूरत है। तो आज के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने आज के हिसाब से बनाई है, मुंबई में उसको मैंने प्लेस किया है कहानी। तो बहुत जरूरी और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है लिटरेचर का सिनेमा में, बहुत बड़ा। Thank you, and we would look forward to seeing that as soon as possible. And चूंकि हम बातें कर रहे हैं किताबों की और कहानियों की, स्टोरी टेलिंग की और राइटर्स की, तो हमारे पास we have writers of this era and this time. So I would like to ask Bhaswar. Bhaswar, it is said that you are an artist who entertains with pen and he is a master storyteller. How has been your entire journey and experience in the process of creating this book, The Counterfeiter, Abdul Karim Telgi and the Stamp Scam? Because you have been a fiction storyteller and this being a non-fiction genre. So how has been your transition and the entire process? Yeah, thanks Jyoti, for the kind words of introduction. It was a very, very different experience writing a non-fiction. This is my first stab at non-fiction. Because in fiction, very often the muse takes you by her hand, and you may have a plot outline, but the character conflict basically drives the plot. So you are allowed artistic liberties or creative liberties, and the story may end somewhere totally unexpected. But in this book, because it is a true crime and a true account, it was very important that I did not deviate from what actually happened. Because normally what happens is when there is something like a true crime, there are so many newspaper reports, so many conflicting, reports. I mean, just a fact as to how much Telgi kind of splurged on a bar dancer goes from 35 lakhs to 93 lakhs. So one has to be very careful to make sure
that you are actually treading the right path. You cannot allow yourself sensationalism. You have to be a planner, not a pantster when you're writing nonfiction. And that I thought was the biggest challenge in writing this book. And of course, also the fact that, I needed some kind of a backbone or a skeleton on which I can actually hang or create the story. And I used all the law cases, involved in the scam as the background or the backbone of the story, because these are all in the public domain, and it was, so that those are basically the issues. Because otherwise, if you look at his life, he's a very flamboyant kind of gangster, not gangster, but he was a very flamboyant individual. So you are very tempted. There are bar dancers, there is a murder happening, there are so many intrigues, there are police and politicians involved. And you get tempted to try and stray that track, but it's very important because you're relating something which is. So I think that was, and it was a very, very interesting and a very, very, shall I say, both challenging as well as captivating. Thank you for sharing that with us. And since you said it is based, and we all know what the book is about, so that brings me to my next question. It is said that drama based on true stories of scams set up an interesting cocktail of crime and drama. And since we are talking about screen adaptations here today, so I would like to ask you, as a writer of one such prickly eye-opener on a national scam, do you think the book should be adapted to screen? This is a story which many people have attempted to tell. Because if you look, there is a movie called Mudrang, which has been made. I believe Disney has been running a number of series on this person. But, they have been based on, frankly, in terms of the written matter, I think what Dipankar was mentioning, very, very relevant in terms of content. Mm-hmm. So in terms of the written matter available for this particular crime, there is only one real book which was created by a reporter called Sanjay Singh in the Hindi vernacular. And that captures events till 2004. Mm-hmm. All right, because it was largely based on a report called the SI. But Telgi died in 2017. So there is a lot which has happened between 2004 and 2017. And I don't think that story has ever been told. And I think what has also happened is there has been, if I've watched parts of Mudrang, and it's like a pot boiler. It is not really a true depiction of what really happened. There is a lot, again, sensationalism. That was not what this book is all about. This book is about how did he use the NAFTA imports to create a front for his stamp business. Okay, how did he do the other business of commodity trading to act as a front for his business? How exactly did the money flow? Who are the various people involved? Okay, and in terms of the intrigue, why did CBI peg this value of the scam at 172 crores when the IT cases against Telgi and the claims were 190 crores, when the court case fines were 250 crores? So there's a lot of intrigue which I have tried to capture and try to present a realistic picture. The other thing which has happened is, of course, there are a lot of allegations against politicians, and I've tried to present both sides of the picture because it's very important. So, for example, if there is a case against Mr. XYZ, who's a very high-ranking officer of the police, I have presented his defense also. So I believe that this book is actually a mother lode for creating a very, very balanced perspective on what actually happened in the scam. So yes, it is definitely very ripe pickings for a story to screen, because it is very, very factual. It is based on cases, and the case references and everything is there in the book. Yes. And yet it's just a 240-page read. Yes, it's a very well-researched book. I want to say something. Actually, Hansal Mehta, I think he's planning to make a film on this scam. Yes, but that he is based on Sanjay Singh's book. Sanjay Singh's book, which is still 2004 only. Thank you for sharing that insight. And we also have with us Sonia Sejwani today. And Sonia, my next question would be to you. You say you are no feminist, but you do firmly believe that women are inherent multitaskers. So how do you manage the work-life balance? So it would be like a little deviation from all the serious discussion we just had. So enlighten us. I think I'm the other female speaker in this panel talk besides you. Yes. Thank you for this opportunity, because I think I'm speaking to Dipankar sir, who's someone who's creating cinema and something on the web series, because we are all watching a lot of OTT, shows these days, Netflix, Prime. So it's a wonderful opportunity that we are sitting here. I'm actually getting to speak to him today, and I've got to meet you and Mr. Bhaskar and Mr. Nitish.
So talking about work-life balance, I think my attire, I think, is the biggest proof right now, because I am back from office and I'm still in my work clothes. When Nitish called me, I was just driving on way back home. So abhi, in a lot of sessions, I have recently been, talking about this thing, and मेरा ऐसा मानना है that yes, of course, I put men and women on an equal pedestal, because I think men also have a lot of responsibilities, family ki, bahar ke kaam ki. But yes, we are inherent multitaskers, and recently I've discovered this fact that the word balance actually थोड़ा सा misleading होता है. It is actually about how much effective you are in a given day, and आप जब कोई चीज कर रहे हैं तो आप उसको कितने अच्छे से कर रहे हैं. You see, Mr. Dipankar sir is at a shoot and he's still taking out time to speak to us. So even he's multitasking today and he's trying to make the best of it. So when right now he's present here, he's giving his 100% attention to what we are talking about. Our biggest misconception is that हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग रोज हर चीज करें. I think there is where we need to understand, especially as a female, because we have our home, we have our child, we have our office responsibilities, and even in office these days, हर कदम पे अब हमसे भी उतनी ही expectations हैं. If today I say that okay, my child is not well, so I'm going to take a leave, वो एक दिन होगा, 2 दिन होगा. But especially being a legal professional, we have challenges every day. So what is important is that आप जहाँ पे जब हैं, आप उस वक्त अपना 100% दें. And I should not have those unrealistic expectations that मैं रोज अपनी किताब पे काम कर पाऊंगी, मैं रोज अपने बच्चे को भी 6 घंटे दे पाऊंगी, या मैं रोज अपने ऑफिस को 12 hours दे पाऊंगी. ऐसा नहीं होगा. I need to understand that, for example, today I got this chance, so my time will come. 24 hours होते हैं, and it is the shift in mindset that 24 hours बहुत कम होते हैं, और I start feeling that 24 hours is a lot in a day. So even if I squeeze in half an hour for myself, maybe for my health, or for my own writing, or for my promoting my books, it is enough for me. And जिस दिन मैं ये नहीं कर पाती हूँ, the most important thing is to understand that I should not be dejected, because as I said, every day you cannot do 20 things in a day. But when you're doing something, you do it with full dedication and commitment. So work-life balance को अब मैंने ये इस तरीके से approach किया है that my work is a part of my life. And more than balancing, I need to be effective. I need to be a good multitasker in the sense that I need to manage my time well and not, putting my health at risk in that process. And the guilt factor needs to go away. I've always been very guilty that whether I'm giving a lot of time to my son, whether I'm doing the right thing, if I'm, pursuing my own passions, and whether I'm a good official. So I think when you leave that guilt aside and you start enjoying what you are doing, if I'm in office, I enjoy my time. If I'm at home, I enjoy my time. When I'm writing, when I'm promoting my books, I'm attending some, festival, or I'm talking to you people right now, I'm doing it because I love doing it. So I think वो बहुत जरूरी है. Dipankar sir is a filmmaker because he loves doing it. Bhaskar sir, you, me, Nitish sir, we are writers because that gives us a sense of satisfaction. So I think सब कुछ balance हो जाता है when we are actually happy with what we are. Very true. Truly said. And since we are bringing the discussion back to books and cinema and adaptations, so I would like to ask you again, you have written 3 books. So if you had one of your books being adapted to screen, which one would it be and why? And before you answer, we would also like to welcome Mr. Vikas Saxena. He's the founder of Literia Insight. Welcome, sir. Welcome. Thank you so much, ma'am. Hi, Vikas. Hi, Dipankar sir. Hi, Sonia. Hello. Hi, Vikas. Bhaskar sir. Hello. Hi, Nitish sir. Yes. So bringing you the discussion back to Sonia, we would like to hear from you. Yeah. So I think Nitish sir and Vikas sir do have an idea about my book, but for those people who are meeting me for the first time, so basically my debut work, I think the black and white is matching with my dress also. So because I'm a law graduate, and it is quite chance that, even though I wanted to become a writer since childhood, but मैंने ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगी. आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉ ग्रेजुएट इन माय फैमिली, एंड इट इज अ टोटल शॉक फॉर मी दैट मैं लॉ के ऊपर एक किताब लिखूंगी. एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट आता है दैट दीस डेज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सीरीज ऑन लॉ, एंड आई थिंक जैसे हमने आर्टिकल 350 या जॉली LLB देखी थी लॉ पे बेस्ड मूवीज, बट जो मेरी डेब्यू बुक थी योर्स लीगली व्हिच गॉट रिलीज्ड इन 2019, व्हिच आई रोट 6 years back. So मैंने वो फेज देखा है जब आप एक बुक लिखते हैं, and then I gave to a lot of publishers, and then after 6 years I got a call from a Bombay based publisher
that he wants to, publish my book, Let's start publishing. So, आपकी सिया LLB is actually the Hindi translation of yours legally. Okay. ये basically अब मैं कहूँगी कि जैसे सब लोग ये कहते हैं कि ये मेरी मूवी दूसरी मूवी से अलग कैसे है और ये अडेप्ट क्यों होनी चाहिए. तो बेसिकली बिकॉज मैंने खुद इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स की थी और जो मेरे खुद के इंसिडेंट्स जो मेरे खुद की आंखों देखी थी. तो इसकी जो कैरेक्टर है सिया, इट्स एक्चुअली मी. एंड जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, मोस्ट ऑफ देम नो दैट ये कैरेक्टर मेरी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड है. शी इज अ लॉ ग्रेजुएट हु वांट्स टू मेक इट बिग, in the legal world without any family backing. एंड ये जो 6 स्टोरीज हैं, डिफरेंट ये है कि ये इंडिपेंडेंट स्टोरीज हैं, बट ये कनेक्टेड है विद अ कॉमन कैरेक्टर सिया, विद अ एलिमेंट ऑफ लॉ, एंड इन सब में एक इमोशनल टच है. आज तक हमने मूवीज में और जगहों में हमेशा एक नेगेटिव साइड ऑफ लॉ देखा है कि जजेस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, करप्शन है, वकीलों को हम एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं. बट विद माय बुक मैंने दोनों साइड्स को दिखाने की कोशिश करी है, एंड एक्चुअली द अदर साइड ऑफ लॉ दैट जस्टिस मिलता है. एंड लॉयर्स के भी इमोशंस होते हैं. मूवीज में या वेब सीरीज में भी ऑलवेज शो लॉयर्स एज वेरी इमोशनलेस और वेरी सेल्फिश एंड वेरी सेल्फ सेंटर्ड. बट बीइंग अ लीगल प्रोफेशनल माई सेल्फ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ जो मेरे कंप्लेनेंट्स थे या मेरे साथ जो काउंसिल्स थे या पार्टीज थे, एक मेरा तिहाड़ जेल का विजिट था, उस पे 2 स्टोरीज हैं. एक मैंने विजुअली इम्पेयर्ड एडवोकेट के साथ काम किया था, उस पे एक बेस स्टोरी है. एक मैंने 80-year-old लेडी का क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस किया था. So the first story 99 versus 99, it is based on that. Because it is my debut creation, definitely if ever something is made, I would want my book Yours Legally to be converted to screen to make people know the other side of law. Because हमारी कंट्री में लॉ की अवेयरनेस उतनी नहीं है. हम लोग को जो दिखाया जाता है हम उसी को बिलीव कर लेते हैं. So I want people to realize that it is a very challenging profession and it is a very tough profession, and it takes a lot of toll, emotional, mental and physical toll on the lawyers. So I want to show that lawyer's perspective through my stories, which I hope I've been able to show through the medium of my stories. And being a short story book, I felt that ये engaging भी रहेगा, अगर कोई web series बने या कोई short movie बने, because it's just a book of 116 pages जिसमें 6 short stories. So definitely yours will be. That's quite interesting. That's quite interesting. तो नीतीश, आपसे मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि आप इतने राइटर्स को गाइड करते हो, नए हो चाहे एग्जिस्टिंग, तो मैं पूछना चाहूंगी ये सवाल आपसे कि आजकल जैसा स्क्रीन अडेप्टेशन और जो ट्रेंड ये सब चल रहा है, तो जो राइटर्स नए हैं स्पेशली, उनके लिए हमेशा एक दुविधा बनी रहती है कि वो एक क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग एक कंटेंट क्रिएट करना, लिटरेरी वर्क देना, या फिर वो जो एक होड़ है कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है या मिलती है, या फिर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मिलती है स्क्रीन अडेप्टेशन से, एक उस तरफ भी एक झुकाव हो जाता है राइटर्स का. तो एज अ गाइडिंग फोर्स टू द राइटर्स, आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि उन्हें कौन सी राह चुननी चाहिए? देखिए, इसका सीधा सा फंडा है कि मुझे क्या लिखना है. जैसे अगर मान लो मैं सोनिया मैम की बात करूं, अगर वो चाहेंगे कि नहीं मुझे एकदम से आउट ऑफ द ब्लू लिखना है कुछ, तो दिक्कत आएगी. सबसे पहले जैसे सर ने बात करी, दीपांकर सर ने, कि हमने जॉन स्टीनबैक की नॉवेल से वो जो मूसो है वो मतलब एडेप्टेड है या उसे इंस्पायर्ड है. तो हम लोग कितने लोग जो है क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं, इसलिए सिर्फ कि हमें ये अडेप्ट कराना है, बुक पब्लिश करनी है, दैट डजंट मेक सेंस. सीधी सी बात है, पहले हमारा फोकस राइटिंग पे हो. क्या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है? क्या जो मैं लिखना चाह रहा हूँ जेन्युइनली लिखना चाह रहा हूँ या ट्रेंड में इसलिए लिखना चाह रहा हूँ? ओके. तो मूसो की जहां बात हुई, और इससे पहले भी हमने दीपांकर जी से सुना ये, और काफी इसके बारे में सुन रखा है हमने, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस फिल्म के लिए आपको लिफ्ट इंडिया अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मिला था, और उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां. डेफिनेटली शुक्रिया. हाँ, तो इस फिल्म के बनने और बनाने के सफर को क्या आप हमें बताना चाहेंगे? वो भी अपने आप में एक फिल्म ही है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कुछ और प्लान कर रहा था मेरी डेब्यू फिल्म को लेके. तो वो क्राइम थ्रिलर एक फिल्म थी जो मैं अब करने वाला हूँ. वो सीरीज है फिलहाल अभी. तो वो प्ले देखने के बाद वो दिमाग से निकल नहीं रहा था, और उसके बाद मैं घर पे आने के बाद मैंने उसका पूरा नॉवल पढ़ा. 5-6 दिन मैंने जितनी भी अब तक उस नॉवल पे काम हुआ है, जितना ड्रामा हुआ है, सब देख डाला. फिल्म जो बनी है वो देख डाली. तो 7 दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे अब नहीं करना है.
मुझे कुछ नया करना है। इतना उस कंटेंट पे इतना कुछ हो चुका है, मतलब इंडिया में कम हुआ है लेकिन बाहर बहुत काम हुआ है उस कहानी पे। तो वो सब कुछ देखने के बाद इंडिया में सिर्फ ड्रामा हुआ है, एनएसडी में प्लेज वगैरह होते रहते हैं उसके, और उसका अडेप्टेशन किया था वीरेंद्र सक्सेना जी ने, ये आदमी ये चूहे, उन्होंने हिंदी में उसको पूरा ट्रांसलेशन करके लिखा था। तो वो भी मैंने पढ़ा, बट कहीं ना कहीं एक ये चैलेंजेस था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे लोग ऑलरेडी, इतने दिग्गज लोगों ने लिख दिया है, तो अभी नया क्या, मतलब कैसे। और दूसरा चैलेंज था कि ये वेस्टर्न कहानी है, तो कहीं ना कहीं वो झलक जो है ना कहानी में नजर आ गई ना, तो फिर फेल हो गया। So now coming back to that question, Okay. जैसा मैंने कह रहा था कि क्या है कि हम जब राइटिंग करते हैं और हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोनिया मैम, ज्योति मैम, भास्वर सर, विकास सर, हम सभी राइटर्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि यार किसी दिन ना बुक की एडेप्टेशन हो। मैं भी राइटर हूँ भाई। तो मेरा काम मैं ज्यादा भी अपनी आसान कहानियां खुद ही लिखता हूँ। दीपांकर सर, फिर मेरा काम ज्यादा आसान हो गया क्योंकि डायरेक्टर्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ी बहुत राइटिंग कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत लेकिन आइडिया। हम लोग फिल्म मेकर नहीं है, हम लोग खाली राइट करते हैं। हाँ, हम लोग खाली राइटर Yeah, हैं। yes, rightly said, Bhaswar. Yeah, we are only writers. नहीं, विकास भाई फिल्म मेकर भी है। But Bhaswar, yeah. नहीं, मैं तो- अभी लाइन में खड़ा हूँ एक्चुअली, मैं दीपांकर सर के पीछे हूँ। नहीं यार, हम सभी लाइन में। And Bhaswar, just now I read from your profile that you have acted in some films and directed a few. So we would like to know about that as well. Films? No, I've never acted in a film. I've acted Okay. in a lot of plays. Yeah. but not- Acha, okay. Books, drama and screen anyway. Okay, yeah. ओके, सो So, मैं एक yes. बात कर रहा था, जैसे दीपांकर सर ने कहा कि मुश्किल से 5-6 ओटीटी हैं जो पॉपुलर हैं, प्रोमिनेंट हैं। अब कहीं ना कहीं सबके है दिमाग में कि यार किसी दिन ना नेटफ्लिक्स पे हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं अमेज़न प्राइम पे हो जाए या हॉटस्टार पे हो जाए, मजा ही आ जाए। मैं सीधी हिंदी में बात करूंगा थोड़ी। तो अब दिक्कत क्या है, अभी मैं ना, मेरा अनंत सर के साथ एक ये था, इंटरव्यू था, हार्पर कॉलिंस की जो सीईओ है, और हार्पर कॉलिंस हमारी इंडस्ट्री का वन ऑफ द टॉप पब्लिशर्स। तो उन्होंने एक डेटा शेयर किया कि हम साल में मात्र 250 से 250 बुक्स ही पब्लिश करते हैं। उसी तरह कहीं ना कहीं दीपांकर से इस बात को मेरे को शायद करेक्ट करेंगे कि नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे G5 हो, सबका एक फिक्स या अराउंड एक टेंटेटिव नंबर होगा कि हम इस साल में इतने ही मूवीज या इतने शॉर्ट फिल्म्स या इतने वेब सीरीज निकालेंगे, एंड एवरीवन इज वाइंग फॉर दैट स्पॉट। तो सबसे सीधी सी बात है, जो बेस्ट लिखेगा उसी का तो कंटेंट उठाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं हम सोचेंगे सिर्फ चूंकि मैं लिख रहा हूं और इसलिए मेरा अडेप्टेशन हो जाए, ये तो बहुत मतलब गलत बात है या न्याय है कि सिर्फ मैं लिख रहा हूं इसलिए मेरा अडेप्टेशन हो जाए। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, आपका थीम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसका स्क्रीन एडेप्टेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, इन फ्यूचर कोई फिल्म मेकर या डायरेक्टर उस पर कुछ विजुअली बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, दैट्स ओके। बट अगर आप ये सोचकर लिख रहे हैं कि अगर आज मैं लिखता हूँ और वो कल स्क्रीन पर आ जाए, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं। तो आई थिंक हमें राइटर्स एज अ राइटर लिखते रहना चाहिए, अच्छे से अच्छा, बेस्ट आप राइटिंग कितना अच्छा दे सकते हैं ऑडियंस को, और आपकी राइटिंग में क्या वो क्वालिटी है कि डायरेक्टर, फिल्म मेकर उसको एडेप्ट करे। तो आई थिंक इस थॉट के साथ हमें लिख। काफी सही बात कही भास्कर आपने। सर, आप, मेरा एक क्वेश्चन था, इफ आई एम अलाउड टू आस्क। Please. आपने ऐसा बताया आपने प्लेस में भी एक्टिंग करी है, और प्लेस का एक अलग मतलब रहता है, थिएटर्स जो है, मतलब जिन्होंने थिएटर्स करे हैं उनका राइटिंग के प्रति अप्रोच अलग रहता है। तो जैसा आपने अपने प्रोफाइल में दिया और ज्योति मैम ने भी बताया कि आई एम एन एक्सीडेंटल राइटर, तो हाउ डू यू मैनेज दैट बैलेंस? क्योंकि थिएटर राइटिंग जो है अलग है थोड़ा सा, दीपांकर से इस बात से एग्री करेंगे शायद, ये थिएटर वाले जो लिखते हैं थोड़ा अलग लिखते हैं, और ये हम जो कमर्शियल अपने आप को कहते हैं राइटर, हालांकि कमर्शियलाइज हमारी राइटिंग बहुत ज्यादा होती नहीं है। क्या डिफरेंस और कैसे उस बैलेंस को मैनेज करते हैं? ऐसा है, I'll speak in English because I'm not very good at Hindi. I mean, Hindi was my second language, but नहीं, I can answer, sorry. And I also scored second highest in that in my class 10, but I'm still very bad. Okay, no issue, no issue. So it is like this. Theater, I have acted and directed. All right. In fact, my wife actually is the one who writes screenplays for theater. I don't do it. I act and direct. So I have not written for theater. And when I write, whatever, so what happened was I wrote a story. It would have remained in my computer. One of my friends said, "Nee, isko bhejo tum." So I sent it and it got published. And that's how it started. That's why I call myself an accidental writer. That's the reason I say. But my thought on this is very clear. When I write, I want to write about what grabs me, not what I think will work, not what I think will sell. Because if it enamors me, if it gets me excited, if it gets me totally involved, engaged, and then when I stop writing,
then I have to start thinking like a marketeer, not like a writer anymore, because then it's a total question of who will read my book, who will hear my book, who will see my book. So I believe that these are very, very two separate compartments. I mean, just picking up from what was being spoken about a little while earlier, that when you write, you should write as to what excites you, not what you believe will sell. So my approach to writing has always been like that. In fact, I'll tell you, I have actually got one novel which I've written in 2015. It was written as a cross genre between crime and magic realism. So when I went to publishers, they said this cross genre will not work. But I was so convinced of the story that I have held on to that story. It's 7 years now. That novel is still with me. And I said, when the world is ready for it, then I will present it. But I will not change it because somebody believes that that's the way it should be said. And I think, every That's day, my point. a lot of authors face this dilemma that what I have written, is it going to work in the favor or not? I remember my own example. When I wrote, about, gang rape, and obviously being a male writer, you write about gang rape and people say that, okay, you are not a female, you're trying to make, I will not take a name. This is a very, at a senior position. When I sent her for, review or the feedback, she said, how can you write it? And trust me, that was a starting journey few years back, and now I'm here. So obviously we all face is that, okay, this is not going to work. Even before we start publishing, people tries to, fit it into their own frame. That, look, the market runs this way and you have to write this way. And after that, we, left, just lamenting that what I have written, what actually I wanted to become, what I have become. नहीं, आपने जैसे बड़ी अच्छी सी बात कही कि लॉयर्स को लेके तो खैर सच बात है ये, मतलब इंडिया में लॉयर और पुलिस इन दोनों को लेके तो इंसानों का जो है ना, हमने जो पोर्ट्रेयल है फिल्मों में, वेब सीरीज में, या तो दे आर वेरी करप्ट या दे आर वेरी आपने जैसे एक वर्ड यूज किया इनसेंसिटिव, तो उस मिथ को तोड़ने में जो है आपकी योस लीगली कितनी हेल्पफुल रही है फॉर द कॉमन मासेस, दैट मिथ ऑफ बीइंग अ लॉयर बीइंग सो इनसेंसिटिव. I couldn't catch the last part. आपकी voice audible नहीं है. What are you saying? उस myth को तोड़ने में? So how much yours legally have been able to, break that myth that, the lawyers and, people from the legal fraternity are mostly insensitive, as you said, that we are portrayed like that only. So see, I think ये myth इसलिए break हुआ है because मेरे को मेरी जो book है उसका जो reader base था उसमें इसमें मैं 2 points कहना चाहूंगी. That one was that it was read by people across ages and across professions and across gender. एक स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट ने भी, एक प्रोफेशनल ने भी, एक एजेड पर्सन ने भी, सबने इस बुक को पढ़ा. एंड सेकेंडली, इस बुक को लीगल लोगों से ज्यादा नॉन लीगल लोगों ने पढ़ा. आई थिंक जितने भी मेरे को रिव्यूज मिले, जितना भी मुझे फीडबैक मिला, जितना भी मैं Amazon पे अपने रिव्यूज पढ़ती हूँ, जितने लोग मुझे सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस करते हैं, तो जो मुझे चीज बहुत इनफैक्ट अच्छी लगी वो यही थी दैट जो लीगल प्रोफेशन से है वो तो इस बुक से रिलेट करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड. लेकिन जो एक लेमैन था जिसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसको इस प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, दे एंजॉयड रीडिंग दिस बुक. एंड आई थिंक बुक लिखना एक होता है, बिकॉज आई थिंक बिफोर अ राइटर वी आर ऑल रीडर्स. बचपन से हमें पढ़ने का शौक था, एटलीस्ट मुझे, एंड उस रीडिंग के शौक से मैं राइटर बनी. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज दैट मेरी बुक को पढ़ा जाए और खत्म किया जाए. ऐसी बहुत किताबें होती हैं जो हम पिक करते हैं बट हम उसको खत्म नहीं करते हैं. मूवी क्योंकि शॉर्ट होती है तो इट इज इजी टू फिनिश इट, कि चलो यार इसको हम फिनिश कर देते हैं, बाद में देखेंगे पसंद आए कि नहीं. बुक को छोड़ना बहुत इजी होता है. सो द फैक्ट दैट आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं एंड उसकी स्टोरी आपको इतनी एंगेजिंग लग रही है कि वो बुक आपने फिनिश करी एंड कुछ घंटों में, 4-5 घंटों में या 1-2 दिन में फिनिश करी. एंड आई ऑल्सो गॉट सम फीडबैक कि कई लोगों ने कुछ स्टोरीज को 2 बार पढ़ा जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इमोशन. एंड कई कॉलेज स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज किया दैट दे गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि वो अपने पैशन को फॉलो करे. मे बी कोई लॉ करना चाहता है या और वो डर रहा है कि ये फील्ड क्या मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, स्पेशली फॉर अ फीमेल. या कोई भी ऐसा है जो अपने किसी भी ड्रीम को पूरा करना चाहता है, टू बी अ डांसर और टू बी एन आर्टिस्ट. सो अगर इन सब चीजों में मेरी बुक ने उनको इम्पैक्ट किया एंड दे गॉट इंस्पायर्ड टू इवन गो इनटू दिस प्रोफेशन. सो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था थ्रू माय बुक, मोर देन द नंबर्स कि मेरी बुक कितनी सेल कर रही है या मुझे कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं. दैट इज सेकेंडरी. बट माय मेन एम इज दैट लोग मेरी बुक को पढ़े, उसको एंड तक पढ़े एंड उसमें से कुछ भी टेक अवे करें, बी इट द कैरेक्टर या बी इट द प्रोफेशन, बी इट द इमोशन. सो आई थिंक वहां मैं खुश हूँ एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स मी. दैट मैं मे बी, कई लोगों ने मुझे बोला कि आप योर्स लीगली पार्ट 2 लिख कीजिए, वी वांट टू सी अ सीक्वल. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इंस्पायर्स मी एंड दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी that people have understood
what I have tried to, portray by the medium of this. So I think उस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये myth को break किया. ओके, एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट्स ट्रांसलेशन? क्योंकि हम बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के अभी करंट मार्केट में देखते नहीं है ट्रांसलेशंस, वो हिंदी में. सो इसके SCILLB जैसा आपने हिंदी में बताया, मैं और पहले भी, मुझे तो पहले से पता है कि ट्रांसलेशन का क्या आइडिया था दिमाग में कि चलो बुक अच्छी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन इन हिंदी, द बुक इज इन हिंदी आल्सो ना, तो क्या दिमाग में था कि मतलब वो उसके दो कारण हैं. पहला तो ये दैट मैं जितना ही इंग्लिश में लिखती और पढ़ती थी बचपन से ही, इनफैक्ट मेरे पहले 2 आर्टिकल्स थे फॉर माय स्कूल मैगजीन व्हेन आई वाज इन क्लास 5, वो मेरी हिंदी में थे. तो मैं हिंदी राइटिंग और रीडिंग की बहुत बड़ी प्रमोटर हूँ. एंड मैं पब्लिक सेक्टर इंडियन ऑयल में मैं जॉब करती हूँ, तो वहां पे भी हमें बहुत इंकरेज किया जाता है कि आप हिंदी में काम करिए, हिंदी में बोलिए, बिकॉज हमारी कंट्री में क्या है ना, वी आर सो इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट दैट हम लोगों को अपनी लैंग्वेज को यूज करने में काफी शर्म आती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हम लोग अब्रॉड जाते हैं तो चाइना में लोग चाइनीज में बात करते हैं, स्पेन में लोग स्पेनिश में बात करते हैं, बट इंडिया में इवन दो इंग्लिश इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोफेशन एंड फॉर योर ग्रोथ, बट हिंदी में ऑडियंस तो बहुत है बट बुक्स कम है. एंड स्पेशली जो मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जो लॉ पे बेस्ड थी, कोर्ट के इंसिडेंट पे, प्रिजन के इंसिडेंट्स पे, आई ऑलवेज वांटेड दैट मेरी एक बुक हिंदी में पब्लिश हो. एंड ये एक जस्ट ट्रांसलेशन नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एडिटिंग फेज में आते हैं, इसको मैंने ही एडिट किया, वो एक तरीके से ऑलमोस्ट एडिट करते करते हर सेंटेंस चेंज हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश का एक्सप्रेशन एंड हिंदी का एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट हो. तो स्टोरी का क्रक्स सेम है, लेकिन जो कहने का तरीका है वो बदल गया जब मैं हिंदी की बुक एडिट कर रही थी. एंड वो ज्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज हिंदी का फॉन्ट यूज करना, कंप्यूटर पे उसको यूनिकोड में टाइप करना, वो बहुत टफ टास्क. एंड एक्चुअली आई एम हैप्पियर विद माय हिंदी प्रोडक्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उस बुक में ज्यादा मेहनत लगी, उस बुक का एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा है. एंड जो भी कुछ कुछ कमियां थी, कुछ कुछ ग्रामेटिकल एरर्स या कुछ कुछ लूप होल्स थे मेरी इंग्लिश बुक में, वो मैंने अपनी आपकी CA LLB से कवर की. एंड हमारी कंट्री में आई थिंक हिंदी रीडरशिप बहुत है. इट इज जस्ट दैट लोगों के पास क्योंकि इतना कुछ विजुअल देखने को है, लोगों में आई डोंट थिंक इतना पेशेंस है कि वो कोई 500 पेज का या 600 पेज का नॉवल पढ़ेंगे. सो दैट इज व्हाई आई फील दैट अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बुक विल एक्चुअली एंगेज द रीडर्स. मैं चाहती हूँ कि लोग पढ़ें, पढ़ने की हैबिट उनमें वापस आए. नेटफ्लिक्स देखने की और मूवीज देखने की हैबिट तो सब में बाय डिफॉल्ट है, बट पढ़ने की हैबिट लोगों में बहुत कम. सो आई लव हिंदी and I'm very happy and I'm very proud of the fact that मेरी एक बुक हिंदी में भी है, because ऐसे बहुत कम authors हैं जिनकी बुक हिंदी में भी है. And in fact yours legally audio book भी है, and I plan to even release the audio book of आपकी CA LLB maybe this year or next year. वो भी मेरा एक टारगेट है कि जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, रुचि नहीं रखते, वो उसको सुने on the go. So this is the reason आपकी CA LLB बहाल. और आपने हिंदी की बात करी, अच्छा ज्योति मैम ने सबका इंट्रोडक्शन कराया, सबकी बातें करी. ज्योति मैम ने अपने बारे, ज्योति मैम को बता दूं, शी हैज बीन द प्राउड विनर ऑफ द राइट इंडिया सीजन 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम. Yes, सीजन 3 winner. Okay, second thing, she has written in non-fiction like Bhaswar sir. She has written a short story collection like Sonia ma'am, and she has written a book in Hindi, Anandi, and which is doing great these days. And third thing, recently she had had her book Anandi as an audio book with Jhankar Studios, which is going to be premiered on various platforms. अब आपसे एक सवाल था, आपसे भी एक सवाल था मेरा. आपने 3 अलग-अलग जॉनर ट्राई किए हैं. नॉन फिक्शन, एम आई ऑडिबल? ओके, एक बार फिर से आप रिपीट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है आपने नॉन फिक्शन करा है जी, आपने शॉर्ट स्टोरी करी है, आपने हिंदी में नॉवेल करी है जी. चौथा हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? पहले तो थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए. और ये सवाल पे वापस आते हैं. मुझे लगता है मैंने बुक्स नहीं चूज की, बुक्स ने मुझे खुद चूज कर लिया. तो इस तरह से इस क्रम में ये तीनों किताबें आ गई. Because I started writing, and Write India has been pivotal to my journey, and because that's where everything started. My story, very first story of my life, being a winner. So that was quite a motivation for me. Or chunki it's kind of a second inning for me. I've done so many things, but there was always something missing, and then suddenly writing happened, and now I feel complete, nothing missing at all. So Write India, thanks to Write India, of course. And then pandemic happened.
और तब जो है आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड थ्रू माई लेंस बुक ने मुझे चूज किया, क्योंकि वो ट्रैवलॉग है और हम 4 दीवारों में कैद बंद कितना ज्यादा मिस कर रहे थे बाहर की दुनिया को. सो दैट्स हाउ दैट बुक हैपेंड, to give a glimpse and that inspiration to people कि yes, the world is still beautiful, it's out there and once again we will be there. और उन यादों को ताजा करते हुए वैसे वो बुक आ गई. और जैसा कि मैंने कहा, राइट इंडिया के समय से ही फिर मैंने कुछ स्टोरीज लिखने शुरू कर दिए थे, शॉर्ट स्टोरीज. और तब लिटेरिया इनसाइट से जैसे मेरी बातचीत शुरू हुई और तब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कर सकते हैं ऐसा मुझे बताया गया. ऑल्दो द मार्केट फॉर इट एंड देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बट इट इज स्टिल देयर. एंड सिंस आई थिंक स्टोरी टेलिंग एक बेसिक है मेरा, फिक्शन स्पेशली. So Bhaswar sir, there's a question for you. After that Yes. the book on Kareem Telgi scam, Abdul Kareem Telgi scam. So which scam going you are to unearth in your next project or your next? I don't know. There are two things. So I have, in addition to the book I mentioned, which is a fiction, there is another one which is a literary fiction, which is with the agent now. So that should be out maybe later this year or early next year. But in terms of true events, there is something which I'm planning to collaborate with another author. Let's see, that is still very much in the formative stages, but it may not be to do with a scam. It actually means you have to do with a national hero who's not been written about too much. So it's still very, very formative, but that we are working on. Okay. But it could be a joint effort with another author. Okay, that's great. Dipankar sir, so आपकी नेक्स्ट मूवी या शॉर्ट फिल्म कौन सी देखने वाले हैं? मैं यार अभी एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ और उसका भी राइटिंग प्रोसेस मतलब हो गया ऑलमोस्ट हमारा काम. तो इट्स अ क्राइम थ्रिलर, राजा कलंदर उसका टाइटल है. इलाहाबाद में एक केस हुआ था जिसमें एक बंदे ने कुछ 14-15 लोगों को मार दिया था. तो सीरियल किलर के ऊपर है, बट उसका जो इंटेंशन था वो ये रहता था कि वो उसे अगर भी लगता था कि यार ये बहुत शार्प माइंडेड है तो उसे वो मार देता था. सिर्फ उसका यही एक रीजन था. तो उसके आजू बाजू में मैंने फिर थोड़ा सा सिनेमा लिबर्टी लेते हुए एक कहानी को लिखा और अभी उसके 7 एपिसोड हमने लिखे हैं. वो ऑलमोस्ट हमारा लॉक हो गए हैं एपिसोड. बस वी आर वेटिंग फॉर कास्टिंग कि कैसे किसको क्या क्या हम कास्ट करने वाले हैं. इसके अलावा भी एक फिल्म मेरी फेस्टिवल में स्टार्ट होने वाली है. इट्स अ राजस्थानी फिल्म, पहली मैंने रीजनल फिल्म बनाई है और इट्स अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फिल्म. सो वो बहुत ही अभी फिलहाल 1 साल मैं चाहता हूँ फेस्टिवल्स में रहे और उसके बाद फिर देखते हैं मूवी पे या कहीं पे रिलीज करेंगे उस फिल्म को हम. तो फिलहाल ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं. एक चूंकि यहाँ पे सारे राइटर्स हैं और आप स्क्रीन से हैं हमारे, तो एक सवाल है मेरा कि राइटर्स को जैसा आप देख रहे हैं, रेगुलर राइटर्स को आप हर दिन देखते होंगे, कई ऑथर्स के आते होंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे ऑथर्स को कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो जो जर्नी है बुक से लेके ड्रामा से लेके स्क्रीन? ठीक है. What advice you would want to give to writers? I think he wants to say something on those lines. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी वही मैं क्या एडवाइस दूंगा राइटर्स को? मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ यार. अच्छे मैं बस यही कहता हूँ कि मैं खुद भी राइटर हूँ. मैं जब लिखता हूँ अपनी कहानी या अपनी फिल्म, जैसा भास्कर सर ने बोला कि वो बहुत टू द पॉइंट बोला इन्होंने कि अगर कभी ये सोच के हम लिखेंगे ना कि ये इसको पसंद आएगा या इसको पसंद आएगा, तो वो कभी किसी को पसंद नहीं आएगा. जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जैसे मैं फिल्म बनाता हूँ तो कोई मुझे शॉट लेना है, तो अगर मैं ये सोच के बैठूंगा यार ये शॉट तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो वो ठीक नहीं है. उस सीन के लिए क्या जस्टिफाई है, क्या ये शॉट इस सीन के लिए जरूरी है? अगर जरूरी है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा. तो मैंने जो आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो टिपिकल स्टीरियोटाइप जो चलता आ रहा है, एक मास्टर शॉट होता है, एक मिड शॉट होता है, एक क्लोजअप हो जाता है, कहानी खत्म. ऐसे बहुत फिल्म मेकर्स है बड़े बड़े, उनके नाम गिनाऊंगा तो मतलब आप बोलोगे ऐसा भी होता है क्या? इतने बड़े बड़े नाम है, उन्हें फिल्म मेकिंग का कुछ आइडिया नहीं. वो एक अच्छा सा FTI से ग्रेजुएट को लेके आते हैं अपने, मैंने खुद नहीं देखा यार, लाइव देखा है मैंने. वो वहां पे बैठ के जॉइंट मारते रहते हैं मॉनिटर पे. वो बेचारा डायरेक्ट कर रहा होता है, एक एसोसिएट जो लेके आए फिल्म स्कूल से पास आउट जो बच्चा है वो उधर डायरेक्ट कर रहा है. ऐसे बहुत फिल्म मेकर्स है बड़े नाम जो है आज. तो मुझे लगता है कि मैं कोई एडवाइस देने की कैपेसिटी में हूं नहीं टेक्निकली. मैं खुद अभी अपना रास्ता कहीं ना कहीं अपने अनुभव के हिसाब से खोज रहा हूँ. पता नहीं कहाँ पहुंचा हूँ कहाँ नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं, और कहाँ पहुंचूंगा ये भी नहीं पता है. लेकिन हाँ ये पता है कि जो कहानियां मुझे कहनी है, जो सिनेमा मुझे बनाना है, जो मेरा एक्सप्रेशन है, वो मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ. मतलब मैं किसी को राय दूंगा अगर, तो वो गलत भी इसलिए भी हो सकती है कि हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है वो तुम्हारे लिए करे, जरूरी नहीं. अपग्रेड हो सकता है मैंने सिनेमा सीखा नहीं है,
मैंने सिनेमा ना तो किसी में फिल्म स्कूल से हूँ, ना मैं कहाँ से हूँ, कहीं से नहीं हूँ। शुरू में जब मैं मुंबई गया था तो मुझे भाई सामने बैठने में डर लगता था। कोई FTI ग्रेजुएट आ जाता था ना कि यार ये तो FTI से उठ के चला जाता था, मुझे पता है मैं इससे बात भी नहीं कर पाऊंगा, यार ये तो क्या क्या कर गया इस बंदे ने, ये फिल्म स्कूल से पास आउट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्कूल FTI है। मुझे गाइड करने वाला कोई था ही नहीं कि फिल्म स्कूल भी होता है या कुछ होता है। अपन तो बैग लेके चल दिए मुंबई जैसे हर कोई आदमी जाता है। लेकिन मेरे साथ अच्छी रही जो सेल्फ लर्निंग है ना। देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, फिल्म स्कूल में इसलिए बच्चे थोड़ा ट्रेंड हो जाते हैं या इसलिए सिनेमा की उनको नॉलेज आ जाती है क्योंकि आप एक कैंपस है। सपोज ये रूम है, इस रूम के इस कोने में सिनेमा की बात हो रही है, उस कोने में सिनेमा की बात हो रही है, वहां भी सिनेमा की बात हो रही है, यहाँ भी सिनेमा की बात हो रही है, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है, वहां साउंड रिकॉर्डिंग चल रहा है, उधर कैमरा टेस्टिंग चल रहा है, उधर कुछ और चल रहा है। तो आप एक माहौल में हो, तो उस माहौल का असर ये होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप लेते रहते हो, तो आपकी नॉलेज जो है इनहेंस होती है। फिर शाम को 7 बजे आपको वर्ल्ड सिनेमा दिखाने के लिए बुलाया जाएगा। पूरा एक जो कहता है ना कैंपस जो है आपको तैयार करने के पीछे लगा है। एक सिस्टम है। तो वो मेरे पास कैंपस नहीं था, इसलिए मैंने वो कैंपस, जहां भी मैं रहता था कैंपस मेरा वही होता था। मेरे कमरे में मेरा कैंपस था, मैं बाहर निकला तो ये पूरा एरिया मेरा कैंपस है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये पूरी ट्रेन मेरी है कैंपस में, फ्लाइट में हो तो ये फ्लाइट पूरा कैंपस है। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत होती थी। फिर पढ़ना, जैसे सोनिया ने बोला कि पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आज जितने भी फिल्म मेकर्स अच्छा जो कर रहे हैं, जो अच्छे फिल्म मेकर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं जो जिससे मैंने भी थोड़ी पहले बताया वो लोग नहीं। जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं वो अच्छे फिल्म मेकर्स बहुत पढ़े हैं। कोई भी ऐसे नहीं अपने आप को प्रूव किया है उन्होंने अपने सिनेमा से, हमने उन्हें पसंद किया है। देखो एक सबसे बड़ी बात है इस इंडस्ट्री में ना, इसमें ना किसी की जैक का सवाल ही नहीं। लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म है, ये है वो है, मैं इस बात को एग्री नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें तो यार आपको बनाने वाली और किया हुआ काम अगर लोगों को पसंद आ गया ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, भले ही तिग्मांशु धूलिया हो या अनुराग कश्यप हो, हंसल मेहता हो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिन्होंने अपने सिनेमा से अपने आप को प्रूव किया है, लोगों ने उनको पसंद किया है। मुझे लगता है कि वही अगेन मैं ही आता हूँ कि मैं किसी को अभी राय देने की कैपेसिटी में नहीं हूँ। मैं खुद अपनी अनुभव से कुछ लिख रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मेरा हो अपना। ये इसके ऊपर ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंस हो गया, मैं कहीं से कुछ यार ऐसा लिख देते हैं, वो नहीं हो। ये मेरा हो अपना, खुद का मेरा हो, मेरा सच हो, जो देखने के बाद फिल्म लोग बोले कि हाँ यार ये तो मतलब कुछ अलग था। वो अलग तभी होगा ना जब वो मेरा होगा। अगर वो इन्फ्लुएंस हो गया कहीं से लिखा हुआ होगा तो हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट। तो इस चीज से तो हम लोग ये चीज एक कहीं ना कहीं किसी इंटरप्रिटेशन ये ले सकते हैं दैट वी नीड टू क्रिएट आवर ऑन ओरिजिनल कंटेंट, सो दैट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कि क्या कौन लिख रहा है ना, कि कौन क्या लिख रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, मार्केट में क्या, जैसा मैंने पहले कहा कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है कहीं उसी को हम फॉलो न करें। वी नीड टू क्रिएट आवर ऑन ओरिजिनल कंटेंट। और जैसा आपने कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड नेपोटिज्म, और समझो ऐसे की बातें बनाई जाती है। जैसे मैं आपको इसमें एक छोटी सी राइट मैं इसमें आपको छोटी सी एक बात बताऊं। जब मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, हाँ मैं इसमें एक छोटा सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ तो सपोज मेरा कोई कैरेक्टर है ए, वो कैरेक्टर मैं उसको कैसे देखता हूँ ना, मैं वो लिखना चाहूंगा। दुनिया कैसे देखती है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसको सपोज सोनिया जी उसको देखती है कि यार वो इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह के उसकी भाषा होनी चाहिए, वो उनका सच है। मेरा है मैं जो देखता हूँ, करेक्ट। तो अगर मैं वो लिखूंगा ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी बात करता हूँ लेकिन मैं इस तरीके के फॉर्मूलाज अपने स्क्रीन प्ले में इस तरह से मैं यूज करता हूँ। उसके जो संवाद है, उसके जो डायलॉग्स हैं, वो मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे इसे देखता हूँ वो वैसे ही लिखनी चाहिए। हो सकता है कभी कभी आप इन्फ्लुएंस भी रहते हैं। देखिए सिनेमा इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। आपको अपना एक्सप्रेशन ढूंढने में एक वक्त लगता है, और मुझे लगता है राइटिंग भी वही चीज है। क्योंकि जैसे भास्कर सर इतना लिख चुके हैं या फिर सोनिया ने बहुत लिखा है, तो आप इनसे पूछिए जब ये शुरुआत में जब इन्होंने पहली कहानी लिखी होगी, अगर इनको पहली कहानी में अपना एक्सप्रेशन मिल गया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इससे ज्यादा लकी कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो क्या होता है ना, कहीं से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी ना, तो लोगों ने मुझे आके बोलते यार ये तो मतलब टू डार्क और है ना, ये तो बहुत अनुराग जैसा कुछ है ना, अनुराग कश्यप वैसा तेरा ये लग रहा है मुझे ना मामला। तो मैं इन्फ्लुएंस था, मुझे पता भी नहीं था लेकिन मैं था। आपको पता नहीं होता लेकिन आप होते हो। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अपना एक्सप्रेशन ढूंढने में एक वो प्रोसेस है।
और इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेगा आपको धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशन समझ में आता है, नहीं यार ये मेरा सिनेमा है, एक्चुअली ये है मेरा असली एक्सप्रेशन जिसको मैं ढूंढ रहा था काफी वक्त से। तो वो आई थिंक राइटिंग में भी होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पहले फिल्म पेपर पे ही बनती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और आपने फर्स्ट स्टोरी की बात करी, डेब्यू स्टोरी की बात की, तो सबसे पहले तो मैं भास्कर सर और ज्योति हम दोनों को फिर से कांग्रेचुलेट करूंगा पूरी टीम की तरफ से, बोथ आर द प्राउड विनर ऑफ द TUI राइट इंडिया सीजन। सबसे बड़ी बात, कांग्रेचुलेशन सर। और मजे की बात ये भास्कर सर के बारे में, सब भास्कर सर मुझे करेक्ट, शायद आपकी भी ये पहली स्टोरी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन वाली? सॉरी, जो TUI की विनिंग स्टोरी है आपकी। हाँ, फिर से दोहराइए उसको। Your winning story in the TUI Right India. I didn't get the question. No, it was not a question. It's not a question. It's just, I'm asking that was the. No, it was not my first short story. Okay, it was not your first. It was not my first short story. Okay. No. But in the case of Jyoti ma'am, it was the first short story which she had ever written. Yes. And as जैसे दीपांकर सर ने कहा कि लक की बड़ी जरूरत होती है, तो यकीनन लक की बहुत जरूरत रहती है लाइफ में। और इसका तो मतलब क्योंकि हमने ज्योति मैम से काफी काम किया है, तो आई नो there is a bit factor of luck also in the literature industry. और जैसा कि इस बात को कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि कहीं ना कहीं बड़े पुराने लोगों ने कहा, everyone has said, that luck, labor and chance, that what opportunity we get, how much labor we put in, and how much the stars are aligned in my favor or in our favor. And with these words, I will conclude the session. And thanks a lot to Bhaswar sir, Sonia ma'am, Deepankar sir, Jyoti ma'am, and our founder Vikas sir. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Nitish. Thanks everybody on the panel, and thanks Thank you. Thank you Thank for the you. platform. Thank you. All the very best to all of you. Stay safe. Thank you, sir.